ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಹೋರಾಟ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನ, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಾನೇ ಹಿರಿಯರಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಸ್ವಾಮಿರಾಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ದೂರದ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ. ನಾವು ಆಯ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ, ಆಂದೋಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಹಮದ್ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಠವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಎಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಹೇಮಂತ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಅಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಸ್ವಾಮಿರಾಯರು ಬಹುಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಪರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ, ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಸಿಂ, ದಯವಿಟ್ಟು can you please stand up, sir? Mr. Suber from Kerala, Mr. Kasim from Kerala, Mr. Balasubramaniam from Tamil Nadu. They also come. I heartily welcome all of them on behalf of our forum and of all of you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ
ಕೈಯಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಇನ್ಯಾರು ತೆಗೆದೇ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे कर्नाटक को एक करने में महती भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ समाजसेवी डॉक्टर पाटिल साहब, आज के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकटचरिया साहब, मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी में उपस्थित हमारे तमाम साथी जो मेरे साथ 20, 25, 30 सालों से जयप्रकाश हेगड़े, गणेश, बालसुब्रमण्यम, तमाम हमारे मित्र जो 25-30 साल से हमारे साथ आए हुए हैं और उपस्थित नौजवान दोस्तों साथियों, मैं पिछले 30-40 सालों से जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के काम से लगातार लगा रहा हूं और इन चुनाव को बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह से जुड़ा रहा हूं और बहुत नजदीक से देखता रहा हूं और दिन प्रतिदिन चुनाव में जो पैसे का खेल चल रहा है उससे मैं लगातार दुखी हो रहा था और 10 साल पहले भी मैं सोचता था कि कुछ करना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में जिस कदर पैसे का खेल शुरू हुआ, मैंने चुनाव के बीच में तय कर दिया था कि अब ऐसे चुनाव से कोई फायदा नहीं होगा और कुछ करना चाहिए। यह सोच करके मैंने दिल्ली में 25 मई पूरे देश भर से अपने तमाम मित्रों को, तमाम बुद्धिजीवी साथियों को, सीनियर जर्नलिस्टों को दिल्ली में बुलाया और मैंने उनको अपनी पीड़ा व्यक्त की कि आज की राजनीति इस कदर हो गई है, इस चुनाव में कहने के लिए तो लोकसभा के चुनाव में 70 लाख चुनाव आयोग निर्धारित करता है। पहले तो मेरा यही सोचना है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो शुद्ध रूप से राजनीति करता है वो 70 लाख भी कहां से ले आए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और केरला जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे कम से कम 5 करोड़ रुपया और अधिकतम 20, 25, 50 करोड़ का भी खर्च हुआ। आंध्र प्रदेश में पिछले 15 साल पहले मुझे एक NRI मिले थे, डॉक्टर ने और उन्होंने बताया कि साहब मेरा 100 करोड़ का खर्च हुआ है पिछले 15 साल पहले, और वो कांग्रेस पार्टी के MP बने थे। कहा है कि जो MP 25 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, मैं तो कह रहा हूं 75 लाख जो चुनाव में खर्च कर रहा है, वह कितनी ईमानदारी के साथ
अपने एमपी बनने का गौरव प्राप्त कर पाएगा या जनता की सेवा कर पाएगा, इसलिए उसको अगला चुनाव लड़ना है। मैं मानता हूं कि हमारे तमाम दोस्त, मैं समझता हूं कि राजनीति में जो लोग भी हैं, समाज के किसी भी वर्ग से ज्यादा ईमानदार, मेहनती और अच्छे लोग होंगे। लेकिन जो राजनीतिक सिस्टम बना हुआ है, जो चुनाव का सिस्टम है, इसमें कोई साधु सन्यासी भी आ जाए, वो भी बेईमान और भ्रष्ट बन जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे राजनीति में और चुनाव में पैसा कम खर्च हो। अभी पिछले जो 3, 4, 5 चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूं कि 1977 में जो चुनाव हुआ था, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट किया, कांग्रेस के खिलाफ। फिर जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय भी मुख्य रूप से लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। मैं समझता हूं यह चुनाव में आज बीजेपी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, इस चुनाव में भी समझता हूं कि 40 से 50% लोगों ने केवल कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के बीजेपी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और जनता समझ रही है और कहा भी गया है कि भ्रष्टाचार हटा देंगे, महंगाई कम कर देंगे और बढ़िया डिसीजन लेंगे, ताकत है डिसीजन लेने की। लेकिन अगर नजदीक से आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब कोई एक सोचे, कल्पना करे केवल कि जो आदमी 20,000 और 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ा हो, भले ही प्रधानमंत्री बन गया हो, वह इस देश में कितना भ्रष्टाचार कम करेगा या महंगाई कैसे कम करेगा, यह कोई कल्पना हो सकती है। इस पर विश्वास करना तो बिल्कुल बेवकूफी हो। और अगर सोचिए कि आज नरेंद्र मोदी जी केवल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इतना रुपया खर्च किया, अगले 5 साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। क्या कल्पना कर सकते कि कांग्रेस पार्टी उस समय तक इस हैसियत में रहेगी कि वो 1 लाख करोड़ रुपया इंतजाम कर पाए, चुनाव लड़ पाए? और जिस तरह से इस चुनाव में सभी पार्टियां एक तरफा हो गई थी, धाराशाही हो गई थी, उस समय तो पता नहीं चलेगा। एक ये भी कल्पना कर लीजिए कि अगर रुपए का ही राजनीति में केवल खेल होता रहा, चुनाव में पैसा खर्च होता रहा, तो कोई फ्रांस से ड्रग माफिया आएगा, 1 लाख करोड़ खर्च करेगा, किसी बहुत टुच्चे आदमी को देश का नेता बनाने की कोशिश करेगा, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, और वो इस देश को कब्जा कर ले, तब क्या होगा? तो पैसा तो सबसे आसान है, लेकिन जिन लोगों को वास्तव में वहां लोकसभा में, विधानसभा में बैठना चाहिए, वो लोग अब नहीं कर रहे। जनता समझती है कि हमारा विधानसभा विधायक, हमारा लोकसभा जो एमपी है, वो हमारी सेवा करेगा। जब इतना पैसा खर्च करके कोई आएगा तो सेवा कहां से करेगा? इसलिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि चुनाव में कैसे पैसा खर्च कम हो, इस पर बहस किया जाए। आज हम सब लोग अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते होंगे शायद नेता बन करके। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको जनता सम्मान की निगाह से नहीं देती। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम एयरपोर्ट पर देखते थे, कोई भी नेता आता था, बहुत लोग खड़े होकर नमस्ते करते। आज एक आदमी भी खड़ा होकर किसी को नमस्ते नहीं करता है। अगर जो करता है वो जानता होगा या उसको कुछ काम होगा तभी करता होगा। वैसे नेता है इसलिए कोई नमस्ते किसी को नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी शहर में चले जाइए और वहां पे कहिए कि साहब इस शहर के 10 प्रतिष्ठित लोगों का नाम बता दीजिए, तो शायद वहां के किसी एमपी और एमएलए का नाम वो आदमी नहीं बताएगा, किसी वकील का बता देगा, किसी डॉक्टर का बता देगा। अब आप कल्पना करिए कि जो नेता आपके लिए लॉ बनाता है, कानून बनाता है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या भाषा बोलेंगे, यह सब नेता तय करता है। और वो आपका एक सम्मानित आदमी नहीं, आप मजबूर में केवल वोट देते हैं। लोग नेताओं को चोर समझने लगे हैं, बेईमान समझने लगे हैं। मैं तो कभी आज तक एमएलए और एमपी नहीं बन पाया, लेकिन मैं पार्टी के संगठन का केवल काम करता रहा। लेकिन मुझे भी लोग चोर समझते हैं, भले ना कोई कहता हो, लेकिन हर आदमी अपेक्षा करता है, मेरे घर के लोग भी, मेरा भाई भी,
मेरे तमाम दोस्त देश भर में, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता वो समझते हैं मैं पार्टी का बहुत बड़ा नेता हूँ, देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ रहता हूँ, प्रधानमंत्रियों के साथ रहता हूँ, जिनका बहुत पैसा हो तो मैं जरूर चोरी करता हूँ अगर मैं कुत्ता बजा पहनता हूँ। विश्वास मानिए मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमसे लोग पैसे मांगते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की जो अपेक्षा है एक नेता से, शायद वो समझता है कि ये दिल्ली में रहते हैं तो जरूर खूब पैसा कमाते होंगे, यह मान के चलते हैं। और आज ऐसे नेताओं की जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनकी प्रतिष्ठा बढ़नी कैसे? आज देश के सामने, सभी राजनीतिक दलों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं खुद टिकट बांट रहा हूं, मैं बहुत खिलाफ था अपराधीकरण के खिलाफ और पैसे के खिलाफ, लेकिन हम भी जब टिकट देने जाते हैं तो हम अपने एक अच्छे वर्कर को टिकट नहीं दे पाते हैं, यह सोच के इसके बाद पैसे भी। ये राजनीतिक दलों के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने अच्छे लोगों को टिकट कैसे दें, जिनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने यह अपनी पीड़ा अपने उस मीटिंग में मैंने रखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप हमें एक सम्मानित नागरिक बनने दें। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा भी सम्मान करें। मैंने 30 साल 40 साल राजनीतिक जीवन बिताया है, लोग छोड़ न समय में, तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे एक नेता का सम्मान बढ़ सके। एक नेता तो आइडियल है ना, कोई भी नेता अपने समाज का सबसे बड़ा आइडियल हो, चुना हुआ प्रतिनिधि। लेकिन वो आइडियल क्या मतलब, उसकी तो हैसियत चोर क्यों हो गई, बेईमान क्यों? आज की तारीख में कुछ करप्ट साधु सन्यासी आइडियल हो गए। किसी भी साधु के यहाँ जाइए, हजारों लाखों की भीड़। आज का आइडियल ये क्रिकेटर बन गया है जो पैसे लेके खेलता है और आउट होता है। आज की तारीख में जो फिल्म वाले हैं जिनका कोई चरित्र ही नहीं होता है, एक आग को छोड़ दिया जाए, वो हमारे आइडियल। तो आखिर वह गरिमा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम नेता की वो गरिमा मिले। इसके लिए भी राजनीति में चुनाव में पैसे कम खर्च हो, इस पर प्रयास करना चाहिए। और ये सब बातें मैंने उनको रखी और एक बहुत लंबे बहस के बाद यह विमर्श हुआ कि अगर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव, सभी चुनाव एक ही दिन हो तो कम से कम भारत सरकार का, चुनाव आयोग का, जनता का 15,000 करोड़ रुपया हर 5 साल में बचेगा। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम हर डिपार्टमेंट के अधिकारी हर चुनाव में 2 महीना बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, कोई काम नहीं करते। वैसे भी आचार संहिता लग जाती है हर चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लग जाती है। कोई सरकार रिजल्ट दे नहीं पाती है, सरकार काम करना बंद कर देती है, अधिकारी चुनाव कराने तैयार नहीं रहते। तो कम से कम 3 लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के चुनाव 3 और हर मिड टर्म पोल, बाई इलेक्शन, कुल मिला के लगभग 4 चुनाव होते हैं इस देश में। और हर चुनाव में मेरा अनुमान है और इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि 5,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये 20,000 करोड़ रुपया केवल हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र को हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र कैसा हो रहा है। और अगर यह एक दिन हो जाएगा तो कम से कम भारत सरकार का ही 15,000 करोड़ रुपया बचेगा। और अगर यह हुआ तो सभी राजनीतिक दल जो आज की तारीख में, मैं समझता हूं कोई राजनीतिक दल के पास टाइम नहीं है अपनी पार्टी को बनाने की, अपनी पार्टी के जो संविधान है उनको पूरा करने का। मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 20-25 साल में कि कभी किसी पार्टी ने अपने कैडर को तैयार करने के लिए कोई कैंप किया। कल हमारे मित्र सिकंदर बुट्टी साहब से उन्होंने कहा ये बात, तो कहेगा तो कैडर ही नहीं है तो ट्रेनिंग किसका हो? किसी पार्टी में कैडर ही नहीं बचा, सब पूंजीपतियों ने, भ्रष्ट उद्योगपतियों ने, सब अधिकारियों ने कब्जा कर लिया, क्रिमिनल्स ने कब्जा कर लिया। तो मैं समझता हूं कि किसी पार्टी पर वास्तव में टाइम ही नहीं बचा है कि अपनी पार्टी बनाए, अपनी नीतियों के बारे में अपने कार्यकर्ता को बताए और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करे। किसी के पास टाइम नहीं, तो कम से कम सभी पार्टी को टाइम मिलेगा अपनी पार्टी को ठीक बनाने के लिए, अपने कैडर को तैयार करने के लिए, अपने नीतियों को लोगों के बीच में बताने के लिए। और जितने हमारे अधिकारी जो 8 महीना 5 साल में काम करते ही जो चुनाव कराते, उन सब के पास 6 महीने का टाइम और बचेगा
जो जनता का काम, गवर्नमेंट के काम है, वो और बढ़िया से कर सकते हैं। अगर हम ये सब करें तो शायद हम फिर एक अच्छा चुनाव, एक अच्छी राजनीति की दिशा में बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा। केवल इतने से ही काम नहीं। राजनीतिक दल आज की तारीख में, जो भी राजनीतिक दल, किसी भी दल में उनका जो संविधान है उसको ही वो पूरा नहीं करता। हम ये चाहते हैं, या फैक्टर ये चाहता है कि इलेक्शन कमीशन देखे कि सभी राजनीतिक दल जो उनका संविधान बनाया उन्होंने उसको पूरा करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल में 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। किसी दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है समय, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल। और चुनाव हो भी जाए अगर, तो फायदा किसी कोई और चुनाव लड़ता है। पिछले 20-25 साल में हमने देखा किसी पार्टी में कोई चुनाव हुआ ही नहीं। और पार्टी के वर्कर आज की तारीख में एकदम बंधुआ मजदूर हो गए हैं अपने पार्टी के अध्यक्षों को। किसी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बहस नहीं हुई। सभी वर्कर केवल पार्टी अध्यक्ष की तरफ या पार्टी के नेता की तरफ जो कहते हाँ साहब ठीक है। और आज उसी का नतीजा है कि देश में कहां पार्टी कहां से कहां चली गई। इसी देश में हमारे उत्तर प्रदेश की एक मुख्यमंत्री मायावती जी थी, जिनकी कोई न राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, न कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सारे डिसीजन खुद लेती और खुलेआम पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि पैसे लेके टिकट देना, और अगर उससे भी ज्यादा पैसा कोई देने वाला है तो उसको टिकट देना। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मानिए कोई उम्मीदवार आया, उसने 20 लाख रुपया दिया, साहब को टिकट दीजिए, उसको दे दी। और कोई 25 लाख देने वाला आ गया तो उसको कह देती थी भाई लोगों 25 लाख हमारे पास आ गया, तुम अपना पैसा वापस ले लो और तुम लड़ो। वहां से शुरुआत हुई देश में, और आपके कर्नाटक तक पहुंच गया कि आपके मुख्यमंत्री एक बड़े नेता देवेगौड़ा साहब के सुपुत्र कुमार स्वामी, मैं उनको जानता नहीं, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कभी उनको देखा नहीं था, पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हो। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपया कोई देगा तो वो हम एमएलसी बनाएंगे, और ये टेप आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एमएलए कह रहे हैं, मतलब हमारा स्तर अब यहां तक आ गया कि हम खुले आम राज्यसभा और विधान परिषद का टिकट बेच रहे हैं। और ये खरीदने वाले कौन हो? भ्रष्ट उद्योगपति हो सकते हैं, भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं, कोई पार्टी का भी तो नहीं हो सकता कर सकता। अभी हमारे दोस्त आंध्र प्रदेश में है, यादव रेड्डी नाम उनका, एमएलसी है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बड़ी तैयारी की कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ेंगे। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, 2 महीना उन्होंने काम किया वहां। कांग्रेस पार्टी को 14 सीट मिली वहां और टीआरएस को 10 सीट मिल गई, 7 सीट टीडीपी को मिल गई। अब उनको 7 सीट की और जरूरत। टीडीपी ने खुलेआम तौर पे कह दिया कि हमको आप 3.5 करोड़ रुपया दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने यह कहा उनको कि आप 10 करोड़ रुपया अगर दीजिए तो हम आपको मैनेज करेंगे। यादव रेड्डी एक पॉलिटिकल आदमी है, पिछले 20 साल से हम लोग के साथ काम करते हैं। उस आदमी का चेहरा मैंने देखा, इतना निराश टूटा हुआ आदमी लग रहा था कि बताइए कि मुझे अब 10 करोड़ रुपया कहां से आएगा। इसे दोस्तों, राजनीति जिस स्तर पर गिर गई उसको थोड़ा उठाने के लिए हम लोगों को एक ठोस निर्णय लेना होगा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ हो। मैं जानता हूं इसके लिए बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जो भी कठिनाई आएगी इसको पूरा करना होगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं। मैं जानता हूं कि चुनाव सुधार को लेकर बहुत लोगों ने बहुत काम किया था। मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं, मैं तो काम को जनता तक ले जा सकता हूं। तमाम बुद्धिजीवियों ने चुनाव सुधार पर बहुत सारे काम किए हैं और सबके सुधार के कागज फाइल में बंद। मैंने वेंकट चरैया साहब से जब मैं मिला था, मैंने उनको यही कहा था, सर मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, हम जो सुधार चाहते हैं हम इसको जनता तक ले जाएंगे
और देश में कोई सुधार बिना जन आंदोलन के नहीं हो सकता है, और वह करने की मेरे अंदर क्षमता है। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं बहुत बात आपसे नहीं करना चाहता, मेरी भावना से आप सहमत हो, जान गए होंगे। मैं जरूर आपसे चाहूंगा, हो सकता है इसमें क्या कमी है, अगर इसके फ्रेमवर्क में बोलेंगे तो हम कुछ निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರೇ, ಮಿತ್ರರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರೇ, ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೋಸನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಅವರೇ, ರೇಮಠ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ವಾಯರವರೇ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಳಿದರು, we have either democracy or concentration of wealth in the hands of a few. We can't have both. ಈಗ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 4 ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 85% ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ goes into the hands of 12% of the people. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ